حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دل تھامے لرزتے ہوئے قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں ان صحابہ کرام میں شامل تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل خوف آخرت سے کانپ رہا تھا۔ ہمارے رونے کی آواز ابھی خاموش نہ ہوئی تھی کہ رحمت دو عالم ہمارے دلوں کے سردار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہماری اشک بھری آنکھوں کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ہمیں وہ لرزہ خیز حقیقت سنائی ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں میں سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ وحشتناک ہے۔ قبر ہی وہ پہلی منزل ہے جہاں اگر بندہ کامیاب ہو جائے تو آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہی سن کر ہم سب اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ کے حضور قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے، اور یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر شفقت بھری مسکراہٹ آئی اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ ان کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ ہمارا یہ سننا ہی تھا کہ ہمارا دل جیسے خوشی سے جھوم اٹھے، فضان نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، دلوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اخلاص سے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم تو بہت زیادہ گناہ گار ہیں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب دیا جو ہر گناہ گار کے دل کو زندگی بخشتا ہے۔ فرمایا، تمہارے گناہ چاہے پہاڑوں جیسے ہوں، اللہ کا کلام ان سب سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور پھر وہ الفاظ فرمائے جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے۔ فرمایا، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اسم اعظم سمجھا جائے، اور جو ان کے ساتھ دعا کرے وہ گویا اللہ کے اسم اعظم سے دعا کرتا ہے، اور اللہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا رد نہیں فرماتا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 2 ایسے گروہ ہیں جنہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جو گائے کی دموں کی مانند ہوں گے، اور وہ ان سے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی۔ وہ دوسروں کو اپنی جانب مائل کریں گی اور خود بھی دوسروں کی طرف جھکاؤ رکھیں گی۔ ان کے سروں پر ایسے انداز سے بال ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ان تک پہنچے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ بوال حدیث صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتا ہے۔ جب وہ محبت سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ غسل و جنابت کرتا ہے تو جس بال پر پانی بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی سے قربت اختیار کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ عمل اور وہ لذت دنیا اور معافی سے بہتر ہے۔ اسی محبت برے اور نورانی گھرانے سے ایک اور واقعہ میں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین سے کہہ رہے تھے کہ آؤ کشتی لڑو۔ جب وہ آپس میں لڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن، ٹانگوں سے پکڑو، اسے پیچھے سے پکڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے بول پڑی، یا رسول اللہ، آپ چھوٹے کو کیوں نہیں بتا رہے، صرف بڑے کو ہی بتا رہے ہیں، آپ چھوٹے کو تو ہدایت دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ تم چپ ہو جاؤ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، حسن کو میں سمجھا رہا ہوں اور حسین کو جبرائیل بتا رہے ہیں۔ ایمان کی روشنی کا ایک اور منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ایسی ہی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، عائشہ، تم شاید سوچ رہی ہو کہ میں نے تمہارے والد ابو بکر کا ذکر کیوں نہ کیا، ان کی تو صرف غار سور میں گزاری کی ایک رات کی نیکیاں ہی
सितारों से ज्यादा है। अब आइए उस बेटे की तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थी, जो वफा की एक जिंदा मिसाल थी, जिनकी आंखों पर चमक और चेहरे पर वफादारी का नूर झलकता था। जी हाँ, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन ईमान ले आई। जब अबुल आस तिजारती सफर से लौटे और सुना कि वो ईमान ले आई हैं, तो बोला, ज़ैनब, आपने सोचा भी नहीं कि अगर मैं इसरार करता तो क्या होगा। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैं अपने वालिद को झुटला नहीं सकती थी। उन पर मेरी माँ, मेरी बहनें अली, अबू बकर, उस्मान और जुबैर सब ईमान लाए हैं। मुझे भी यकीन है कि तुम भी इनकार नहीं करोगे। अबुल आस ने कहा, मुझे तुम्हारे बाप पर यकीन है, उनकी सच्चाई पर कोई शुबह नहीं, लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने बीवी की खातिर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। जब जंग बदर का तूफान आया तो अबुल आस कुफार के लश्कर के साथ शरीक हुए और कैद होकर मदीना लाए गए। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शोहर की रिहाई के लिए वही हार फिदिया के तौर पर भेजा जो उनकी वालदा हज़रत सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें जहेज में दिया था। जब वो हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। सहाबा कराम खामोश हो गए, जमीन पर नजरें झुका ली। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये हार ज़ैनब को वापस कर दूं और अबुल आस को रिहा कर दूं, बशर्ते कि वो ज़ैनब को मदीना भेज दे। सहाबा कराम ने सरे तस्लीम खम किया। अबुल आस ने वादा निभाया और ज़ैनब को रवाना किया। जब सईदा ज़ैनब मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुरैश ने पीछा किया। हबार बिन असवद ने नीजे से उनके ऊंट को खौफजदा किया, जैसे आप जमीन पर गिर गईं। वो हामला थी, चोट शदीद थी और उनका हमल ज़ाय हो गया, मगर उन्होंने सब्र किया, वफा निभाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा एक अनमोल बेटी के तौर पर जिंदा रही। ये वो बेटियां थी जिन्होंने दुख सहे, आंसू बहाए, मगर ईमान की चमक उनके चेहरों से कभी मदम ना हुई। कनाना बिन रबी गजबनाक हो गए, अपने तीर निकाला और उन्हें तरकश पर चढ़ाकर ललकारा कि खबरदार, अब तुम में से कोई आगे बढ़ा तो उसे छलनी कर दूंगा। कुफार रुक गए, अबू सुफियान भी उनमें शामिल थे। उन्होंने कहा, भतीजे अपने तीर रोक लें, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कनाना ने पूछा, कहो क्या बात करना चाहते हो। अबू सुफियान ने उनके कान में आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जिस तरह रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ा है, तुम मुझसे बखूबी वाकिफ हो। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस तरह लोगों के सामने खुला हमारे सामने ले जाओगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई होगी। बेहतर यह है कि तुम उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हमरा मक्का मुअज़्ज़मा वापस लौट चलो और फिर किसी वक्त खुफिया तौर पर मदीना मुनव्वरा ले जाना। कनाना ने यह बात मान ली और सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ गए। 4 दिन बाद वो रात के वक्त हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमरा लेकर बतन या हज पहुंचे और उन्हें हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सपोर्ट कर दिया। मक्का मुअज़्ज़मा वापस चले गए। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंची। हज़रत अबुल आस को हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत सईदा ज़ैनब के चले जाने के बाद वो बहुत बेचैन रहने लगे। जब भी अबुल आस इरम के मकाम से गुजरते तो ज़ैनब को याद किया करते थे और कहा कि खुदा उस शख्स को शादाब रखे जो हिरा में मुकीम है। अमीन की लड़की को खुदा जज़ाए खैर दे और हर खावंद इस बात की तारीफ जिसको वो खूब जानता है। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हिजरत करने में यह दर्दनाक मुसीबत पेश आई। इसीलिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फ़ज़ाइल में यह अरशाद फरमाया कि ये मेरी खैर बनात है। बेटियों में इस एतबार से बहुत अच्छी कि मेरी जानब हिजरत करने में इतनी बड़ी मुसीबत उठाई। ख्याल रहे कि यह खैरियत अच्छाई इस अमर के बायस है कि हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को राह हक में कई तकालीफ का सामना करना पड़ा। एक मुद्दत वालिद करीम की रफ़ाकत और सफ़र हिजरत में दरपेश मुश्किलात। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र हिजरत में जो तकलीफ उठाई थी उनका इतराफ़ खुद लिसान नबूवत से मनकूल है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मेरी खैर बनात है जिसे मेरे लिए इतने मसाइब से गुजरना पड़ा। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये अज़ीज़ा उठाना हज़रत अबुल आस के ईमान लाने का सबब बन गया। हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये अच्छाई खैर हज़रत अबुल आस तक मुतद्दी हुई और ये वो सिफत है जिसमें आप तीनों बहनों से मुमताज़ रहीं। हज़रत सईदा रुकिया और सईदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर
हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले से मुसलमान थे, लेकिन हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर हजरत अबुल आस पहले से मुसलमान न थे। जंग बदर में मुशरिकीन के साथ होकर आए थे, फिर कैदी भी हुए और हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा उनका फिदिया मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा भेजना पड़ा और वो सईदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिया हुआ हार था जो सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने शोहर के फिदिया में भेजा था। आपका ये वाक़या हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा के मदीना मुनव्वरा आने का सबब बना। अब हजरत अबुल आस से जो नेकी और कुर्बानी अमल में आएगी वो सब हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का ही शुमार होगा, जो मुख्तलिफ अफराद में फैलता चला गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब बेटी में अफसर हजरत सईदा फातिमा ज़हरा हैं। उनकी शान अपनी ज़ात में बहुत ऊंची और बुलंद है, लेकिन खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ही हैं। अपनी ज़ात में फजीलत रखना और बात है और दूसरों तक अच्छाई पहुँचे ये पहलू एक खैर है। अफसरुल बनात सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली अल मुर्तज़ा की ज़ौजा थी, तो खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ सास ठहरी। हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत के मुताबिक सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी सैयद इमामा बिन्त अबिल आस से निकाह किया था और ये भी खैरुल बनात का ही खैर था जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला और हजरत हसनैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दर्जा शफ़क़त मादरी बना। और देखा जाए तो इस पहलू से सैयदना अली अल मुर्तज़ा भी ज़ुन्नौरीन हो गए और इसी वजह से खैरुल बनात हजरत सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ठहरी और अफसरुल बनात आपकी ज़ौजा मोहतरमा बनी। मोहतरम नाज़रीन, सही बुखारी जल्द अव्वल की एक अजीम रिवायत में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन का एक गिरोह एक दिन कब्र के अज़ाब से पनाह मांगते हुए अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे। मैं भी उन सहाबा में शामिल था। हमारी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, दिलों में खौफ था, जुबान कांप रही थी कि इतने में नबी रहमत फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हालत देखकर अरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, ये तुम्हारी आंखों से अश्कों की रवानी क्यों है? हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हूँ। आप ही ने फरमाया था कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कब्र का अज़ाब तमाम अज़ाबों में सबसे ज़्यादा दर्दनाक और होलनाक है और कब्र ही वो पहली मंजिल है जिससे अगर कोई बंदा कामयाबी से गुजर गया तो आगे की राहें उसके लिए आसान हो जाएंगी। बस इसी खौफ ने हमें अल्लाह के बारगाह में झुका दिया है, उसी दर्द ने हमारी आंखों से अश्क जारी कर दिए हैं। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात ना बता दूं कि जो बंदा इनका विर्द करे अल्लाह ताला उस पर कब्र का अजाब खत्म कर देगा और उसके लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। यह सुनना था कि सहाबा कराम के दिल खुशी से झूम उठे और सबकी जुबान पर नारे तकबीर जारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ ले अल्लाह ताला उससे कब्र का अजाब हटा लेता है और जन्नत के 8 दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुनाह चाहे जितने भी हों, अल्लाह का कलाम उन सब से बड़ा और ताकतवर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा तवक्कुफ फरमाया और अरशाद फरमाया, ये वो कलमात हैं जिन्हें इस्म आज़म समझा जाए। जो इन कलमात के साथ दुआ करे वो गया अल्लाह के इस्म आज़म के साथ दुआ करता है और अल्लाह ताला इस्म आज़म के साथ मांगी गई दुआ रद्द नहीं फरमाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। जो शख्स ये कलमात अपने लिए या अपने मरहूमीन के लिए पढ़े और इसाले सवाब करे, अल्लाह ताला उस पर कब्र का अजाब ख़त्म फरमा देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। बाहवाला सही बुखारी जल्द अव्वल। नादरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपनी रहमत के सदके वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नादरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।